جو قدم میں اٹھانے جا رہی تھی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو نہ صرف میری عزت خراب ہوتی، بلکہ میں لوگوں کی نظروں میں گر جاتی۔ مگر میں مجبور تھی اور انتہائی مجبوری کی حالت میں ہی مجھے یہ کرنا پڑ رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، اور مجبوری میں تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ تو میں بھی اس انتہا تک پہنچ گئی تھی کہ اب میرے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ اگرچہ جو کچھ میں کرنے جا رہی تھی وہ غلط ہی تھا، مگر اس غلط کو کر کے ہی میری زندگی میں سب ٹھیک ہو سکتا تھا۔ میں نے فون ملا کر ان خاص آدمیوں کو کال کی اور پوچھا کہ کیا تم لوگ تیار ہو؟ تو وہ میرے ہی حکم کے منتظر تھے۔ جیسے ہی میں انہیں اشارہ کرتی وہ میرے گھر میں آ جاتے۔ میرے شوہر کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہونی چاہیے تھی، اسی لیے میں نے دودھ میں نیند کی دوا ملا دی اور اپنے شوہر کو دے آئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ گہری نیند سو گیا تو میں نے اپنے پلان پر عمل کرنے کا سوچا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا، دور دور تک گلی میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہی مناسب وقت تھا کہ جو میں سوچ رہی تھی اس پر عمل کر لیا جائے۔ میں نے دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملائی اور اپنی نند کے کمرے میں آ گئی۔ وہ ابھی سو رہی تھی لیکن میں نے اسے جگا دیا اور کہا کہ آج تم دودھ پیے بغیر ہی سو گئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ بھابھی جب میں سو ہی گئی تھی تو مجھے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، اور اب مجھے نہیں دودھ پینا، آپ لے جائیں۔ مگر میں اگر دودھ لے جاتی تو پھر میرے پلان کا کیا ہوتا؟ اسی لیے میں نے بہانہ بنایا اور کہا کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ جب تک تم دودھ پی کر نہیں سوتی تمہارے بھائی جان مجھ سے خفا رہتے ہیں۔ ابھی بھی انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے، تو میرے لیے نہیں اپنے بھائی کے لیے ہی اب یہ پی کر سو جاؤ۔ اور وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ بھائی کے نام پر وہ نرم پڑ گئی اور میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر غٹا غٹ پی گئی۔ میں مطمئن ہوتی ہوئی باہر آ گئی۔ اب بس صرف کچھ ہی منٹوں کا کھیل تھا، اور جب 10 منٹ کے بعد میں دوبارہ کمرے میں گئی تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے ان آدمیوں کو فون کر کے گھر کے اندر بلایا اور ان کی مدد سے اپنی بے ہوش نند کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ یہ ٹوٹل 3 آدمی تھے، جن میں سے ایک گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور 2 میرے ساتھ اس وین میں بیٹھے تھے۔ رات کے اس پہر یہ کاروائی کرتے ہوئے میں اندر ہی اندر بہت بری طرح ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں میں خود ہی مصیبت میں نہ آ جاؤں۔ اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں یہ تینوں اعتبار کے قابل تھے یا نہیں، مجھے تو ان لوگوں سے بھی ڈر ہی لگ رہا تھا۔ ان کے بارے میں مجھے میری ایک دوست نے بتایا تھا کہ یہ ہر قسم کا غلط کام کرنے کے ماہر ہیں، تو میں نے اسی سے ان کا نمبر لیا تھا، لیکن ظاہر ہے میں ان کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتی تھی، اور یہ تھے تو مرد ہی۔ رات کے اس وقت ایک اکیلی عورت کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں دل ہی دل میں وظیفے کرتی رہی اور جلد ہی ہم ہماری مطلوبہ منزل پر پہنچ گئے۔ میں اپنی بے ہوش نند کو ان لوگوں کی مدد سے کوٹھے کے اندر لے آئی۔ ان لوگوں سے بھی میں پہلے ہی بات کر چکی تھی کہ میں اپنی نند کو ان کے پاس چھوڑنا چاہ رہی ہوں، اور ان لوگوں کو کیا چاہیے تھا؟ ان کے لیے تو یہ لاٹری کا ٹکٹ تھی۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ میں نے اپنی نند کو کوٹھے والوں کے حوالے کیا اور خود واپسی کی راہ پکڑی۔ واپسی کے راستے میں بھی میں خدشات کا شکار ہی ہوتی رہی، مگر ان لوگوں نے مجھے بحفاظت میرے گھر کے آگے پہنچا دیا۔ میں نے انہیں مکمل پیسوں کی ادائیگی کر دی تو وہ وہاں سے چلے گئے اور میں گھر میں داخل ہو گئی۔ شکر ہے کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں جاگا تھا۔ میں جا کر اپنے شوہر کے پہلو میں لیٹ گئی اور سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی دوران مجھے کچھ کھٹکے کی آواز آئی تو میں چونک گئی۔ یہ آواز تو میری بیٹی کے کمرے کی طرف سے آئی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ گئی کہ اللہ خیر کرے، رات کے اس پہر اس کے کمرے میں کون آ گیا جو وہ یوں چیختے ہوئے اٹھی ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو اٹھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہماری بیٹی کے کمرے میں کوئی آیا ہے، مگر وہ نہیں اٹھے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ انہیں تو میں نے ہی نیند کی گولیاں دے کر سلایا ہے۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس سے میں چھٹکارا پانے کے لیے اسے کوٹھے پر چھوڑ کر آؤں گی، وہی اس وقت میرے سامنے میری بیٹی کے کمرے میں بیٹھی ہوگی۔ مگر میری بیٹی وہاں نہیں تھی۔ میں گھبرا گئی، اسے آوازیں دینے لگی کہ انوشا تم کہاں ہو؟ میں پاگلوں کی طرح پورے گھر میں اپنی بیٹی کو آوازیں دے کر ڈھونڈنے لگی۔ میری نند آرام سے میری بیٹی کے کمرے میں اس کی چارپائی پر بیٹھی ٹانگیں جھلا رہی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ سب یقیناً اسی کی کارستانی ہے۔ میری بیٹی کے غائب ہونے کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا جو یوں اتنے مزے سے اور مسکرا کر مجھے دیکھ رہی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی بھابھی اپنا وقت اور انرجی ضائع مت کریں، آپ کی بیٹی یہاں پر نہیں ہے۔ میں تو جیسے پاگل ہی ہو گئی۔
اس को बाजू से पकड़कर खड़ा करते हुए पूछने लगी कि कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया है तुमने उसके साथ? तो वो कहने लगी ज्यादा कुछ नहीं, बस वही जो आपने मेरे साथ किया है। हाँ, लेकिन मैंने जगह बदल दी है। अब उसे वहां पर तो नहीं बेच सकती थी ना, जहां पर आपने मुझे भेजा। ये सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि उसने मुझसे बदला ले लिया है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रही थी कि वो यहाँ तक पहुंची कैसे। वो तो बेहोश हो चुकी थी, और जब मैं उसे वहां पर लेकर गई तो सारे रास्ते वो बिल्कुल बेसुध रही थी, और लगता ही नहीं था कि वो जाग रही है। तो मेरे आने के 5-10 मिनट बाद ही वो यहाँ पर आखिर कैसे पहुंच चुकी, और कोठे वालों ने उसे आने कैसे दिया? ये बहुत सारे सवालात थे जो मेरे दिमाग में गुडमुड हो रहे थे, मगर इन सवालात के जवाबात जानने का वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की परवाह थी। वो मुझे किसी भी सूरत मेरी बेटी का पता बताने को तैयार ही नहीं थी। मुझे कहने लगी कि अब तो सुबह आप भाई को ही बताइएगा कि आपकी बेटी कहाँ गायब हो गई है। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो कह दूंगी कि आपकी बेटी भाग गई है। वो तो हंसती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया, मगर मैं वहीं साकित खड़ी रह गई। यकीनन मुझसे बदला ले रही थी, मगर उसे इस सब के बारे में कैसे पता चला कि मैं भी उसके साथ यही करने वाली थी और उसके बारे में यही कहने वाली थी। अब मैं पछता रही थी कि मैंने क्यों इस औरत के साथ पंगा लिया। मुझे इसके साथ दुश्मनी करनी ही नहीं चाहिए थी। इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा मैंने अपनी बेटी को खो दिया। अगर सुबह मेरे शौहर को पता चलता तो घर में तो तूफान आ जाता, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं बाहर निकलकर पागलों की तरह इधर से उधर अपनी बेटी को तलाश करने लगी, मगर वो कहीं होती तो मुझे नजर भी आती। वो तो कहीं पर भी नहीं थी। मैं रोती हुई अपने घर वापस आ गई। मेरा हौसला नहीं हो रहा था कि अपने शौहर को उठाकर उनसे बात करूं। वैसे भी मैं जितना मर्जी उठा लेती, नींद की गोलियों के जेरे असर उसने अपने वक्त पर ही जागना था। अब मुझे इंतजार था कि सुबह क्या तमाशा होगा। ये सब मेरी गलती थी। मुझे अपनी नंद के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं उसके साथ ये सब ना करती तो वो मेरी बेटी के साथ भी ना करती। मेरा नाम तहमीना है और मैं 3 बहनों के बाद चौथे नंबर पर थी। मेरा ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है। हमारे घर वाले बहुत मुहज्जिब और पढ़े लिखे शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते थे। मेरे अब्बा ने मेरी बड़ी बहनों की शादी भी अपने ही जैसे लोगों में की थी, मगर मेरे ख्वाब शुरू से ही बहुत ऊंचे थे। मैं चाहती थी कि किसी अमीर कबीर घराने की बहू बनूं, जहां मुझे ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए घुट घुट कर ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े और ना ही हर चीज़ के लिए तरसना पड़े। यहाँ तो मेरे माँ बाप हमें सब्र और शुक्र पर लंबे लंबे लेक्चर देकर चुप करवा दिया करते थे, मगर मैं नहीं चाहती थी कि मैं शादी करके भी किसी ऐसे ही घर में जाऊं जहाँ पर यही सब होता हो। मेरे लिए कई रिश्ते आए, मगर मैं सबको इनकार करती रही, क्योंकि मुझे अपनी शादी के लिए जैसे लोग चाहिए थे वो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। फिर एक दिन मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ उसकी शादी पर गई तो वहाँ का माहौल देखकर बहुत मुतासिर हुई। मेरी वो दोस्त एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी, और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर फंक्शन का इंतज़ाम किया था। मेरी दोस्त चूँकि मेरी आदत से वाकिफ़ थी और मेरी ख्वाहिशात से भी, तो मुझे कहने लगी कि मेरी शादी में सभी अमीर-कबीर घरानों से लोग आए हैं। अगर तुम किसी को यहाँ पर मुतासिर कर सकती हो, तो कर लो। किस्मत आज़माने में कोई हर्ज नहीं। ये कह तो वो बिल्कुल ही ठीक रही थी। आजकल का वो ज़माना नहीं था कि घर में बैठकर अच्छे रिश्तों का इंतज़ार किया जाए, बल्कि खुद अच्छे रिश्तों को अपनी पहुंच में करना चाहिए, और मैंने भी वही किया। मुझे एक ऐसी फैमिली बहुत अच्छी लगी जिसमें ज्यादा लोग नहीं थे, बस वो 2 बहन भाई ही थे। उनके सर पर माँ बाप का साया नहीं था, और वो दोनों ही एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते थे। मैंने सोच लिया कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से जिसका नाम आमिर था। आमिर देखने में भी खूबसूरत और हैंडसम था, और उसकी बहन भी किसी से कम नहीं थी। मुझे आमिर की निस्बत उसकी बहन थोड़ी चालाक लगी, मगर मुझे इसे अपने बस में तो करना ही था। उसे अपने हाथों पर डालना था, ताकि वो हम दोनों की शादी के बारे में सोच सके। ये प्लानिंग बहुत लंबी थी, और उस पर बहुत आराम और सुकून से काम होना था। इसीलिए मैं अपने हिस्से के काम करके उनकी तरफ से इंतज़ार करने लगी कि कब वो लोग मुझे बहू के हक में कबूल करेंगे। मुझे मेरी दोस्त ने मशवरा दिया था कि अगर इस लड़के को काबू करना है तो पहले इसकी बहन को करना होगा, क्योंकि इन बहन भाई की आपस में बहुत मोहब्बत है, और वो अपनी बहन की पसंद से ही शादी करेगा। तो मैंने उसकी बहन मोमिना को अपना दोस्त बना लिया। शादी के इन 3-4 दिनों की दोस्ती मजीद गहरी हो गई। अब मेरा और उसका फोन पर भी राब्ता था, और वो सीधी सादी सी बेवकूफ सी लड़की थी
जो जल्द ही मुझे भाभी बनाने के दावे करने लगी, और मैं उसकी बातों पर सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती। मेरा प्लान कामयाब हो रहा था, और एक दिन वो भी आया जब अपने भाई के साथ मेरा रिश्ता लेकर वो इस घर में आ गई। मेरी ये सबसे बड़ी जीत थी कि मैंने अपना नसीब खुद लिखा था। अम्मी अब्बा इतने अमीर घर में मेरा रिश्ता करना तो नहीं चाह रहे थे, मगर मेरे इसरार पर उनको हामी भरनी पड़ी, और यूं मैं मोमिना की भाभी बनकर उस घर में चली गई। शादी के बाद ही मुझे अपनी नंद खटकने लगी थी। वो मेरी दोस्त नहीं थी, मैंने सिर्फ अपने मतलब के लिए उसे अपना दोस्त बनाया था। और अब जब मेरा मतलब पूरा हो गया था, तो मुझे वो कांटा लगने लगी थी, क्योंकि मेरा शौहर उसकी किसी बच्चे की तरह परवाह करता, उसे अपनी बेटी कहता, और तब तक वो खाना न खाता जब तक वो आकर न खा लेती। हम जहाँ कहीं भी जाते वो हमारे साथ ही होती, और हमारी जिंदगी के हर मामले में उसकी मदाखलत और मशवरा तो बहुत ही ज़रूरी था। इसीलिए मैं उससे जान छुड़ाने की तरकीबें सोचने लगी, और बेहतर तो यही था कि उसकी शादी हो जाए, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। मैं उसके लिए रिश्ता तलाश करना चाह रही थी कि अचानक ही उसने हमें खुद ही हैरान कर दिया, और अपने भाई को कहने लगी कि मैंने एक लड़के को पसंद किया है। अगरचे वो हमारी तरह अमीर नहीं बल्कि मिडिल क्लास है, मगर मैं उससे ही शादी करूंगी। मुझे उम्मीद थी कि मेरा शौहर तो हरगिज भी नहीं मानेगा, मगर ये क्या, उसने अपनी बहन को गरीबों में ब्याह दिया। मैं भी खुश थी कि चलो अब मेरी जान छूटेगी, क्योंकि वो दूसरे शहर में थी और वहां से इतनी जल्दी उसका यहाँ पर चक्कर भी नहीं लगना था। शादी के इन सालों के दौरान मेरी दो बेटियां और एक बेटा पैदा हो चुका था। वो अब कभी कभार ही आती थी और ज्यादातर फोन पर ही बात कर लेती थी। जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। मेरी इस पुरसुकून सी जिंदगी में हलचल तब मची जब हम पर यह खबर कयामत बनकर टूटी कि मेरी नंद मोमिना के शौहर का इंतकाल हो गया है। मेरा शौहर तो ये सुनते ही तड़प गया, और उसी वक्त हम उसके ससुराल गए। जब वापस आए तो वो भी हमारे साथ थी। मुझे अपनी नंद का अपने घर पर दोबारा वापस आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो अभी जवान थी, और शादी के सिर्फ 5 साल बाद ही बेवा होकर घर वापस आ गई थी। जो भी ये सुनता तो बहुत अफसोस करता। अफसोस तो मुझे भी था, लेकिन मैं उसे उम्र भर के लिए अपने सर पर नहीं बिठा सकती थी। जब उसकी इद्दत गुजर गई तो मैंने अपने शौहर पर जोर दिया कि अपनी बहन की दोबारा शादी के बारे में सोचें, मगर मेरी नंद ने साफ इनकार कर दिया, और कहने लगी कि मैं अब कभी भी दोबारा शादी नहीं करूंगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, तो मेरे शौहर ने मुझे ही डांट दिया और कहने लगा कि जो मेरी बहन की मर्जी होगी वही होगा। पहले मेरे शौहर का वक्त, उसकी मोहब्बत और उसकी सब चीज़ों पर मेरा हक था, और अब वो भी हिस्सेदार बनकर आ गई थी। मेरा शौहर जो कुछ भी मेरे लिए लेकर आता, वैसी ही वही चीज़ मेरी नंद के लिए भी लेकर आता, और ये मुझे गवारा नहीं था। और वो भी ऐसी थी कि अपने भाई का पीछा ही नहीं छोड़ती थी। जितने बड़े हादसे से वो गुजरी थी, उसे तो अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकलना चाहिए था, मगर वो तो जैसे अब जाकर आज़ाद हुई थी। घर के कामों में भी उसकी मुदाखलत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे टोकना शुरू कर दिया, और उसे उसकी हैसियत याद दिलानी शुरू कर दी कि वो हम लोगों पर सिर्फ एक बोझ है। वो भी मेरे रवैये को समझ रही थी, और मैं भी यही चाहती थी कि वो अच्छे से समझ ले कि उसकी यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है। एक दिन तो इंतहा ही हो गई। हमारी शादी की सालगिरह थी, और मैं ये दिन सिर्फ अपने शौहर के साथ ही मनाना चाहती थी। इसलिए मैंने पहले से ही होटल में बुकिंग करवा ली, ताकि हम दोनों इकट्ठे डिनर कर सकें। जब शौहर ऑफिस से वापस आए, तो मैंने उन्हें सरप्राइज देने की खातिर डिनर का जिक्र किया। उनका सबसे पहला सवाल ये था कि तुमने मोमिना से पूछा क्या वो हमारे साथ जा रही है कि नहीं। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, वो उससे पूछने लगे कि क्या तुम हमारे साथ डिनर पर जाओगी। और वो भी ऐसी घूमने फिरने की शौकीन थी कि फौरन ही तैयार हो गई। जबकि आज के इस अहम दिन के मौके पर तो मैंने अपने बच्चों को भी नहीं पूछा था कि वो हमारे साथ चलेंगे या नहीं, तो मैं उसको कैसे पूछ लेती। मगर मेरे शौहर की समझ में यही बात तो नहीं आ रही थी कि हमारी अपनी भी कोई ज़ाती ज़िंदगी है। वो तो जैसे सिर्फ अपनी बहन के ही होकर रह गए थे, और ये हरगिज़ भी मुझे काबिल कबूल नहीं था। मैं किसी भी तरह से उसे दोबारा से कहीं भेज देना चाहती थी, ताकि वो मेरी ज़िंदगी से निकल जाए और पहले की तरह मैं राज करने लगूं, क्योंकि उसकी मौजूदगी में तो ऐसा मुमकिन नहीं था। एक एक काम अब मेरे शौहर उसकी पसंद और रजामंदी से करने लगे थे। मैं कुछ कहती तो उल्टा मुझे ही समझाते कि वो बेवा होकर इस घर में आई है, अगर मैं इसका ख्याल नहीं करूँगा तो कौन करेगा, और मैं चुप हो जाती। मैं उसके खिलाफ बोलकर अपने शौहर को अपने खिलाफ नहीं कर सकती थी।
میں نے اپنی ایک دوست سے مشورہ کیا تو وہ مجھے یہ کہنے لگی کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی نند سے چھٹکارا حاصل کر لو، کیونکہ اب وہ بیوہ ہو کر آئی ہے تو بہت انسیکیور ہوگی اور وہ یہی چاہے گی کہ اپنے بھائی کی تمام تر جائیداد اپنے نام کر لے تاکہ اس گھر میں اپنی پوزیشن مضبوط کر سکے۔ یہ سن کر میں واقعی تشویش میں مبتلا ہو گئی کہ اگر ایسا ہوا تو میں اپنے بچوں کے ساتھ کہاں جاؤں گی؟ اگرچہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ مومنہ ایسی ویسی کوئی حرکت کرے گی، مگر جس طرح کا زمانہ چل رہا تھا کسی سے کچھ بھی بعید نہیں سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ کب کیا کر گزرے۔ میں نے آخر سوچا کہ میں اسے کسی ایسی جگہ بھیج دوں گی جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے تاکہ میری باقی کی زندگی سکون سے گزرے۔ آخر میں اسے کہاں پر بھیج سکتی تھی؟ میرے اچانک ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر اسے کسی کوٹھے پر بھیج دیا جائے تو وہ لوگ ہمیشہ اسے اپنے قیدی بنا کر رکھیں گے اور کبھی بھی واپس نہیں آنے دیں گے۔ اس صورت میں ہمیشہ کے لیے اس سے چھٹکارا پا لوں گی۔ میں نے پورا پلان بنا لیا تھا کہ میں اپنی نند کو بے ہوشی کی دوا دوں گی اور اس کو کوٹھے پر لے جا کر بیچ دوں گی اور صبح شور مچا دوں گی کہ میری نند تو بھاگ گئی ہے۔ میرا شوہر بھی جب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا تو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا، پھر چاہے وہ جتنی بھی مرضی کوشش کر لیتا وہ اپنی بہن کو تلاش کرنے کی، مگر اسے کبھی نہ ملتی، اور میں نے یہی کیا تھا۔ لیکن جانے میرے پلان میں ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ یہ الٹا مجھ پر ہی بھاری پڑ گیا۔ میری نند کو تو اس وقت وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، مگر وہ میری بیٹی کے کمرے میں صحیح سلامت موجود تھی اور اب میری بیٹی اس کے قبضے میں تھی۔ جانے اس نے اسے کہاں پہنچا دیا ہوگا۔ یہ سب میری غلطی تھی، کاش میں ایسا نہ کرتی۔ میری بیٹی ابھی صرف 8 سال کی تھی، وہ بہت معصوم تھی۔ مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں اسی وقت اٹھ کر اپنی نند کے پاس گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، اسے معاف کر دو اور میرے گناہوں کی سزا اسے مت دو، اسے واپس لا دو۔ وہ ہنسنے لگی اور مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ ظاہر ہے اب وہ کیوں میرا لحاظ کرتی جب میں نے ہی ساری حدوں کو پار کر دیا تھا، تو اسے کون روک سکتا تھا؟ صبح ہوئی کو کچھ دیر کے بعد میرے شوہر کی آنکھ بھی کھل گئی۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا پوچھتے تھے۔ میری نند تو 10 منٹ کے بعد ہی اپنے بھائی سے ملنے آ گئی، مگر جب بیٹی نہیں آئی تو وہ بے چین ہو گئے اور بار بار اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کی بیٹی رات کو اغوا ہو چکی ہے، اور وہ بھی ایک ایسی غلطی کے ہاتھوں جس میں اس کا بالکل بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ میں رونے لگی۔ مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے شوہر کو اس بارے میں سب سچ بتا سکوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ خود ہی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں چلے گئے اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ گھبراتے ہوئے کمرے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ وہ تو کمرے میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ میں نے بھی ان کے ساتھ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کا ناٹک کیا اور یہ دیکھ کر ہم دونوں ہی حیران رہ گئے کہ اب تو میری نند بھی اپنے کمرے میں نہیں تھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میرے شوہر نے پولیس کو بلوا لیا کہ ان کی بیٹی اور بہن دونوں غائب ہیں، وہ کہاں جا سکتی ہیں۔ میرے شوہر نے FIR درج کروا دی تو میں خوف میں مبتلا ہو گئی کہ کہیں میں ہی نہ پکڑی جاؤں۔ اگرچہ میں نے تو اپنی نند کے لیے پلان کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں اس میں کامیاب نہیں ٹھہری تو کہیں پولیس والے مجھے سب کا ذمہ دار نہ سمجھ لیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری نند کہاں پر جا سکتی ہے۔ اس کا تو اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ یقیناً وہ وہیں گئی ہوگی جہاں پر اس نے میری بیٹی کو رکھا ہوگا، کیونکہ میں اس طوائف خانے میں فون کر کے معلوم کر چکی تھی جہاں پر میں اسے چھوڑنے گئی تھی، وہاں پر میری بیٹی نہیں تھی۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لڑکی آپ کی گرفت سے کیسے آزاد ہو گئی تو انہوں نے مجھے حیرت انگیز بات بتائی۔ کہنے لگے کہ ہم نے تو اسے کمرے میں بند کر دیا تھا اور باہر سے دروازے کو تالا لگا دیا تھا، مگر پھر جب 10 منٹ بعد دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ تمہاری نند تو بہت ہی تیز ہے، کھڑکی سے لٹک کر نیچے سڑک پر پہنچ گئی اور پھر فرار ہو کر گھر آ گئی ہوگی۔ میں یہ سب اپنے شوہر کو نہیں بتا سکتی تھی اور نہ ہی اس پر الزام لگا سکتی تھی، کیونکہ پھر اس کے بعد میرا بھی سچ سامنے آ جاتا، اور جتنا پیار میرا شوہر اپنی بہن سے کرتا تھا کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھے ہی طلاق دے دیتا۔ اب وہ بھی گھر پر نہیں تھی، جانے کہاں چلی گئی۔ اگر وہ گھر پر ہوتی تو میں اس کے پیروں میں پڑ جاتی، اس سے معافی مانگتی کہ وہ مجھے معاف کر دے، مگر میری بیٹی کا پتہ مجھے دے دے۔ لیکن اس کی غیر موجودگی بھی اب ہمیں پریشانی میں ڈال رہی تھی۔ مجھے کسی پل سکون نہیں تھا۔ ایک تو بار بار میرا ضمیر ہی مجھے ملامت کر رہا تھا کہ اگر میں مومنہ کے ساتھ برا نہ کرتی تو میری بیٹی کے ساتھ بھی برا نہ ہوتا، تو دوسری طرف مومنہ کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کا پتہ چل جاتا تو اس سے میری بیٹی کا پتہ نکلوانا نہایت آسان ہو جاتا۔
मगर वो तो जैसे गधे के सर से सींग की तरह गायब ही हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद मैंने अपने शौहर को भी हार मानते हुए देख लिया। कहने लगा, शायद हमने उन दोनों को कहीं खो दिया है। अब हमें सब्र कर लेना चाहिए। मगर एक माँ होने के नाते मैं कैसे सब्र कर सकती थी? वो भी तो एक बाप थे, इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते थे? कुछ दिनों के बाद मुझे अपनी बेटी की तस्वीरें मौसूल हुईं। वो किसी कोठे पर लग रही थी। जैसे ही मैंने वो तस्वीरें देखी तो चीख कर अपने शौहर को बुलाया। उसी वक्त वहां से वो तस्वीरें डिलीट कर दी गईं। मुझे पक्की उम्मीद थी कि ये मेरी नंद की तरफ से ही भेजी गई हैं। मैंने अपने शौहर को कहा कि अभी अभी मुझे किसी ने हमारी बेटी की तस्वीरें भेजी थी। वो सख्त मुसीबत में है, उसे बचा लें। मगर मेरे पास उन्हें दिखाने का कोई सबूत नहीं था। उन्होंने इसे मेरा वहम करार दिया और कहा कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस हकीकत को तस्लीम कर लो कि अब हम कभी अपनी बेटी को नहीं देख सकते। न जाने वो किस हाल में होगी, लेकिन जहाँ पर भी हो वो खुश ही रहे। मैं अपने शौहर पर चीख पड़ी कि आप कैसे बाप हैं जिनको अपनी बेटी का एहसास ही नहीं है। आपकी बेटी खो गई है और आप इतने आराम से ये बात कर रहे हैं। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, मेरी नंद को देखकर हम दोनों ही शॉक्ड रह गए। मेरे शौहर ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और पूछने लगा कि वो ठीक है या नहीं, और ये भी पूछा कि वो कहाँ चली गई थी। उसने एक जख्मी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे, मैं बगैर बताए घर से चली गई थी, मगर मैंने भाभी को बताया तो था। क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? मैं उसकी बात पर चौंक गई कि वो ये क्या कह रही है। यकीनन वो मुझे फंसाने के लिए ये सब कह रही थी। मेरे शौहर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहा कि ये क्या कह रही है? अगर तुम्हें पता था कि ये अपनी दोस्तों के साथ घूमने फिरने गई है, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं उन्हें क्या बताती? मुझे तो खुद नहीं मालूम था कि मैं किस मुसीबत में फंस चुकी हूँ। बिलाशुबा मुझसे ज्यादा होशियार तो मेरी नंद थी, जिसने ऐसा खेल खेला था कि मैं खुद ही चकरा कर रह गई थी। वो तो वापस आ गई थी, फिर मेरी बेटी कहाँ थी? मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी सारी गलतियों को तस्लीम करती हूँ। सिर्फ मुझे इतना बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है। वो हंसते हुए कहने लगी कि आपको तस्वीरें भेजी तो थी, आपने देखी नहीं? वो वहीं पर है जहाँ पर आपने मुझे भेजने की कोशिश की थी। आपके ख्याल में तो बहुत अच्छी जगह थी ना, जहाँ पर मैं आराम और सुकून से रह सकती थी। तो मेरा भी आपकी बेटी के बारे में यही ख्याल है कि वो वहाँ पुरसुकून सारी जिंदगी रानी बनकर ऐश करेगी। मैं रोने लगी कि वो तो मासूम सी बच्ची है, तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी? तो वो गुर्राते हुए कहने लगी, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। मैं भी तो मासूम ही थी, और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ इतनी घटिया साजिश रचाई? मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी दोस्त और भाभी समझा था, इसीलिए तुम्हें ब्याह कर अपने घर ले आई। मगर मैं क्या जानती थी कि तुम आस्तीन का सांप निकलोगी और मुझे ही रास्ते से साफ करोगी। तुमने सोचा था कि अगर मैं इस घर से चली जाऊंगी तो तुम हमेशा के लिए घर और जायदाद की अकेली मालकिन बन जाओगी। मगर मेरा क्या होता? उस कोठे पर मेरी बाकी की जिंदगी कैसे गुजरती? क्या तुमने एक बार भी सोचा था? नहीं सोचा होगा, इसलिए मैं भी अब तुम्हारी बेटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। मैंने रोते हुए कहा कि वो तुम्हारी भतीजी है, कुछ तो ख्याल करो। मेरे गुनाहों की सजा उसको तो मत दो। वो नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगी। वो मेरी भतीजी नहीं, सिर्फ तुम्हारी बेटी है। कल को तुम्हारी तरह ही निकलेगी तो अच्छा नहीं है कि वो तुमसे दूर कर दी जाए। माँ के किए की सजा उसके बच्चों के आगे ही आती है और उन्हें भुगतनी पड़ती है। तो अब तुम्हारी सारी गलतियों और कोताहियों की सजा वो भुगतेगी। तुम्हें उसे देखना है तो देख लो। उसने अपने मोबाइल पर कुछ तस्वीरें मेरे आगे की तो मेरा कलेजा ही कट गया। उन तस्वीर में मैं अपनी बेटी को रोते हुए देख सकती थी। कुछ लोग उसे नाचने पर मजबूर कर रहे थे और वो रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़ रही थी। ये सब देखकर मेरा दिल लरजने लगा। मैंने कहा, तुम्हारा कैसा पत्थर दिल है? तुम्हें ये मंजर देखकर तरस नहीं आ रहा? देखो तो मेरी बेटी किस कदर मजबूर है। तो वो कहने लगी कि यही मंजर मेरे साथ दोहराया जाता तब तो तुम बहुत खुश होती। क्या तुमने सोचा था कि मेरे साथ भी ये सब होगा तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी? अब बात तुम पर आई है तो तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र हो रही है, उस पर गुजरने वाली तकलीफों का एहसास हो रहा है। लेकिन मेरी दफा तुम्हें ये सब ख्याल नहीं आया कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की इज्जत हूँ। मेरे अंदर भी जज्बात और एहसासात हैं। मैं कोई मोम की गुड़िया तो नहीं जिसे एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह भेज दिया। जीती जागती इंसान थी जिससे तुमने नफरत की इंतहा कर दी। तुम शायद भूल गई थी कि मैं वही थी जो तुम्हें इस घर में लेकर आई थी।
मैं ही थी जिसने तुम्हें अपने भाई की ज़िंदगी में जगह दी और खुले दिल से कबूल किया। उसके साथ तुम्हारी शादी करवाई और तुम्हें भाभी बनाकर इस घर में लाई। मैंने तो तुम्हें हमेशा माँ के बराबर ही समझा था, मगर ये तो मेरे वहमो-गुमान में भी नहीं था कि तुम अंदर ही अंदर मेरी जड़ें काट रही हो। मैं बेवा होकर आ गई, तो मैं तुम्हारी आँखों में खटकने लग गई। हालाँकि शायद तुम ये बात नहीं जानती कि ये घर मामा ने मेरे नाम कर दिया था, क्योंकि ये घर मेरी माँ को उनकी माँ से तोहफ़े में मिला था जब वो पैदा हुई थी। और इसी रिवायत के पेश नज़र जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने इस घर को मेरे नाम पर कर दिया। अब तुम बताओ कि इस घर की असल मालकिन कौन है? मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूँ और तुम्हारी सारी असलियत अपने भाई के सामने बयान कर दूँ। वो तो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा और तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देगा। उसकी सारी बातें बिल्कुल ठीक थी और अब मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर जिस तरह मैं तड़प रही थी और मेरी बेटी जिस तरह रो रही थी, ज़ाहिर है अगर इसकी जगह मोमिना होती तो वो भी इन्हीं हालात से गुजरती। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने उसके साथ कितना गलत करने की कोशिश की। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। मुझे कहने लगी कि मुझे तुम पर पहले ही शक हो गया था कि बेवा हो गई तो मुझे इस घर में तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी और जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकालने के लिए कोई ना कोई साजिश ज़रूर करोगी, क्योंकि मुझे अब रवैयों को पढ़ना आ गया है। लेकिन ये वाक़ई में मेरे वहमो-गुमान में नहीं था कि तुम इतनी घटिया साजिश करोगी कि मुझे किसी कोठे पर ही दे आओगी। मैंने तुम्हारी सारी गुफ्तगू सुन ली थी। इसीलिए जब तुम दूध का गिलास लेकर मेरे कमरे में आई, तो तुम्हारे सामने तो मैंने वो पी लिया, मगर मैंने वो अपने हलक से नीचे नहीं उतारा, मुँह में ही रखा। और जैसे ही तुम कमरे से बाहर गई तो मैंने फ़ौरन वो थूक दिया। जब तुम मुझे कोठे पर छोड़कर चली गई तो मैंने उन लोगों में से एक को पैसों का लालच दिया और उसने खिड़की खोलकर मुझे फरार होने में मदद दी और मैं फ़ौरन घर वापस आ गई। मैं चाहती थी कि तुम्हें सबक सिखाऊं ताकि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो। इसीलिए मैंने तुम्हारी बेटी को इसी वक्त उठाया और स्टोर में जाकर लिटा दिया, तो तुम्हें लगा शायद मैं उसे कहीं और भेज चुकी हूँ। फिर अगले रोज़ सुबह मैं भी उसके साथ यहाँ से चली गई, क्योंकि जिस जगह पर वो मौजूद थी मेरा भी उसके साथ रहना निहायत ज़रूरी था। मैंने ही उसे ये सब करने को कहा था कि एक ड्रामे में इसे हिस्सा लेना है और उसके लिए ये रोल अदा करना ज़रूरी है। वो मासूम मेरी बातों में आकर वैसा ही कर रही थी। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए किया था कि अगर ये सब मेरे साथ होता तब भी गलत ही होता। जब खुद पर बीतती है तब इंसान को अगले की तकलीफ़ों का अंदाज़ा होता है। मेरा मकसद तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का नहीं था और ना ही मैंने ऐसा किया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो कहने लगी, जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी बेटी वापस आ गई है। मैं भागती हुई दरवाजे पर गई तो वाकई मेरी बेटी वहीं मौजूद थी। मैंने उसे गले लगा लिया और ऊंची आवाज़ से रोने लगी, तो वो अपनी फुप्पो की तारीफ करते हुए कहने लगी कि उन्होंने इतने दिन मुझे बहुत इंजॉय करवाया, मैं अब उन्हीं के साथ सोया करूंगी। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। मैं वापस उसके कमरे में आई और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। ये मोमिना का बड़ापन था कि उसने न सिर्फ मुझे माफ़ कर दिया, बल्कि इस सारी बात को मेरे शौहर से भी छुपा लिया।